Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss a recent earthquake that happened in Tibet and which had impact in Nepal and even in North India also. I hope you are aware. So this earthquake came on 7th January in the morning. So we will discuss this. We will be discussing about how earthquake happens, the past earthquakes, the most powerful earthquakes, how it is measured, and things associated with that. What are the government initiatives or government of India's initiative in fighting earthquakes and all or disaster? So, am I audible, visible? Is everything fine? Am I audible? Okay. So let us begin with today's class. I think I'm audible, visible. तो एक्चुअली कहीं के भी न्यूज में 6.8 लिखा था. देयर आर सम प्लेसेस वेयर एक्चुअली इट इज रिटन 7.1 मैग्नीट्यूड. सो लेट अस सी. So if you have read this article, I'm sure in today's the Hindu newspaper, in every newspaper, this was an article talking about thousands of homes destroyed, 126 killed as rescue efforts continue after earthquake in Tibet. So this was an article, and 24 hours after that Tabler struck, survivors trapped under rubble will have an endured night in sub-zero temperature and be at risk of succumbing to hypothermia and dehydration. तो इसमें बताइए, रबल मतलब होता है वो डेब्रिस, मतलब जो टूटा हुआ घर का टूटा हुआ हिस्सा, दैट्स कॉल्ड एज रबल. तो इट इज सेइंग कि 24 घंटे होने के बाद भी मतलब बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं उसमें, जो मकान टूटा हुआ मकान बचा है. एंड दे आर सेइंग इट कि सब जीरो टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी लेस, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. एंड आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट. आपको पता होगा हियर इज एक्चुअली हिमालयस. तो और द प्लेस वेयर एक्चुअली द एपिसेंटर ऑफ दैट इज समवेयर हियर इन तिब्बत. यहाँ पर दिस इज द एपिसेंटर वेयर दिस earthquake happened. तो आपको पता होगा, आई होप यू आर अवेयर, देयर इज, इफ यू आर लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, देयर इज एक्चुअली कोल्ड, है ना. आई मीन वेरी मच कोल्ड, आई वुड बी सेइंग. एंड स्पेशली इफ यू लिव इन हिमालयन रीजन, अगर हिमालयस के आसपास रह रहे होगे तब तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री से भी, सब 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री से भी लेस जा रहा है टेम्परेचर. सो अब होता ये, यू कैन सी दीज आर द इमेजेस. और ये शिगात्से सिटी है ना, तिब्बतन ऑटोनमस रीजन के बारे में बता रहे. सो तो ये जो इफ यू रीड द आर्टिकल, इट सेज the epicenter was actually of Tuesday's earthquake was 7.1 magnitude, one of the region's most powerful tremors in recent years. It was located in Tingri in China's Tibet region, about 80 kilometers from Mount Everest. तो माउंट एवरेस्ट जो है उससे 80 किलोमीटर दूर. तो माउंट एवरेस्ट समवेयर हेयर आपको यहाँ पे मिलेगा नेपाल में. And I hope you are aware why is Mount Everest famous? Because it is the highest peak of the world. तो जहां पर भी आपको पता होगा एल्टीट्यूड्स में तो ठंड ऐसे भी ज्यादा होती है, जहां पर भी पहाड़ी एरिया होगा, wherever you will find actually a mountainous region, you will find actually very cold. I mean currently North India is witnessing a lot of cold, है ना. तो चूंकि एपिसेंटर यहाँ पर था, दिस इज द एपिसेंटर. So those who are living in North India, तो अगर आप बिहार, North UP, somewhere here, even in there are people were saying even till Delhi there were tremors well felt and all. तो अगर आप इस रीजन में रहे, so you must have actually witnessed the earthquake and all. So that is what you should know. तो ये आया था कब, यानी 7th जनवरी को. It came on 7th January, somewhere around I think 6:35 AM के आसपास. So that is what you should know. Okay, so let us read further. तो इसमें वही बता रहे हैं कि अगर सब 0 टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर है, so there is a risk of succumbing to hypothermia. हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपोथर्मिया मतलब जब इंसान का जो है ना एवरेज जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस कि अगर बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना भी गर्म हो या ठंडा हो, जनरली ह्यूमन बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करती है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. बट अगर बहुत ज्यादा ठंड हो जाए, इफ देयर इज टू मच कोल्ड, then maybe the human body temperature will go down to 35 degrees Celsius somewhere, or this is called as a hypothermia.
और इससे बीमारी भी हो सकती है. इट कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट स्टॉपिंग और समथिंग लाइक दैट, और एनीथिंग कैन हैपन. तो अब देखो चूंकि वहां पे बहुत कोल्ड है और लाइक हाउसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड, सो पीपल आर एक्चुअली हैव बिकम होमलेस. उनका घर टूट गया है. तो अब क्या है कि दे कैन सक्कम्ब. सक्कम्ब मतलब होता है हार जाना, मींस lose the fight. So there are chances that if there is hypothermia, a person can die in the open air. मतलब अगर वो earthquake से सर्वाइव कर गया अभी और वो बाहर रह गया बहुत देर तक, तो ठंड से डेथ हो सकती है. और डिहाइड्रेशन मींस वाटर लॉस, बहुत हैवी वाटर लॉस, चूंकि बिकॉज देयर इज शिवरिंग कोल्ड इन दैट रीजन, बहुत ज्यादा ठंड है, तो उससे ये हो सकता है कि डेथ हो जाए. सक्का मतलब हार जाना एक तरह से. तो is die because of hypothermia or dehydration. So maybe the body might not be able to fight the hypothermia or dehydration. So this is the intensity. That is what you should be knowing. So Chinese officials have said that 30,000 residents have been located and all. तो 30,000 लोगों को relocate किया गया है. और ऐसा बताया जा रहा है कि 400 लोग, 400 people almost are trapped and all. So that is what you should be knowing. ठीक है, कहीं कहीं पे 6.8 मैग्नीट्यूड लिखा, किसी किसी न्यूज़पेपर में 7.1 भी लिखा है. सो वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. ठीक है, बट जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट, अबाउट द रिक्टर स्केल एंड ऑल. खैर, तो आप देख सकते हो, तो इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ भी कि देखो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट एकदम बॉर्डर पर, यहाँ पे यहाँ पर अर्थक्वेक आया और इसके बगल में शिगात्से सिटी है ना, तिब्बत का. सो पहले ये समझो, देखो दिस इज, लेट मी शो, ये जो रीजन है इसको हम लोग तिब्बत कहते हैं, है ना. और ये जो सिटी है उसका वो शिगात्से है, और शिगात्से से थोड़ा सा दूर आया है. सो सम हियर यू विल फाइंड, ये यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है. दिस इज माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. और यहाँ पे दिस इज द एपी सेंटर वेयर दिस एक्चुअली द प्लेस वेयर द मेन अर्थक्वेक हैपेंड. तो जब अर्थक्वेक आता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत दूर दूर तक होता है ना. तो इवन नॉर्थ बिहार, नॉर्थ यूपी रीजन में भी लोगों ने फील किया. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. ओके, नाउ शिगात्से सिटी क्यों बता रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर पांचेन लामा रहते हैं. दैट इज व्हाई ये सिटी इंपॉर्टेंट भी है. दिस आई एम शोइंग यू शिगात्से सिटी, और इसके पास में यहाँ पर जो है एपी सेंटर है, यानी जहां पर अर्थक्वेक आया, द प्लेस वेयर दिस अर्थक्वेक हैपेंड. ओके, सो एपी सेंटर को पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं व्हाट इज एक्चुअली एपी सेंटर, बिकॉज एपी सेंटर, हाइपर सेंटर, फोकस, ये न्यूज में रहता है. सो एपी सेंटर इज एक्चुअली द प्लेस. देखो जैसे मान लो ये जमीन है, अर्थक्वेक नीचे में कहीं पर मान लीजिए, यहाँ पर एग्जैक्टली द प्लेस वेयर एक्चुअली द अर्थक्वेक हैपेंड. तो जमीन के अंदर जहां पर अर्थक्वेक होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं, और हाइपो सेंटर. ओके, so if there is a, let's say the fault or there's a movement of tectonic plates inside the land or inside the crust, that exact location is called as hypocenter or focus. लेकिन उसके ऊपर की जो जमीन है, if you go just above it, so this land is actually the place called as epicenter. ठीक है, एपिसेंटर जमीन का हिस्सा है जिसके जस्ट नीचे अर्थक्वेक आया था, ऐसे समझ लेना. that if this is let's say this is the place of epicenter of earthquake, it means the earthquake happened the main somewhere here down, इसी के नीचे में कहीं पर earthquake आया होगा. ठीक है, और जहां पे एग्जैक्ट प्लेस है जहां पर क्रैक्स आया, that is called as focus or hypocenter. Is it clear? Have you got the difference between epicenter and hypocenter? Is it clear? Do you have any question? If you have any question, you can ask. Otherwise, we will move. And I will explain further कि tectonic plates क्या होता है, and movements of the plate boundaries and all I will discuss further. ठीक है, I think it's clear. है ना. एक बात तो ये होगी कि एपिसेंटर यहाँ पर, उसके पास में एक फेमस सिटी शिगात्से. Now, why is Shigatse so famous? And it is mentioned in the newspapers and all. अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो इसमें शिगात्से सिटी का ही डिस्कशन है. और देखो नीचे लिखा है कि this is the place, the seat where Panchen Lama lives. तो देखो आपने इनका नाम सुना होगा, दलाई लामा का, है ना. एंड इनका जो ओरिजिनल नाम है, his original name is Tenzin Gyatso, and he is actually, Dalai Lama is the Tibetan spiritual leader from Buddhism. Like, he is a Buddhist leader, but since 1959 he is living in India. धर्मशाला, हिमाचल में जगह है, मैक्लियोडगंज धर्मशाला. It's actually a tourist spot also. तो 1959 से यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, because there is a reason, like we are not going in that reason, but you should know it कि because of some reason he is not living in China and he is actually living since 1959 in India. ठीक है, तो ये जो हो गए सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हो गए
तिब्बतन बुद्धिस्ट के। ओके, द सेकंड सीनियर मोस्ट लीडर है, उनको कहते हैं पांचन लामा, इज द सेकंड इन स्पिरिचुअल अथॉरिटी टू दलाई लामा। एंड दिस पांचन लामा एक्चुअली इज लिविंग इन शिगास्ते, नियर शिगास्ते एक मोनास्ट्री है वहां, ठीक है। इसलिए शिगास्ते जो है ना सेकंड ओनली टू दलाई लामा। सो पांचन लामा is the second senior most Tibetan Buddhist leader, and that person is actually living in Shigatse. ठीक है, इसलिए शिगात्से को कई बार न्यूज में दिखाया गया कि शिगात्से से इतना दूर है ईपी सेंटर। सो आई होप इट इज क्लियर कि व्हाई शिगात्से वाज बीइंग डिस्कस्ड। ये पूरा सारा जो है ना वो तिब्बत में आता है, ये पूरा रीजन, ठीक है, दिस एंटायर कम्स इन तिब्बत। ओके, यस, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। हाँ, तो जो दलाई लामा है करेंटली, ही इज एक्चुअली सिंस 1959 वो यहाँ से तिब्बत से यहाँ गए थे, और यहाँ पर लेट मी शो, देखो ये दिस इज द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मैक्लियोडगंज, धर्मशाला। धर्मशाला का आपने नाम सुना होगा, यहाँ क्रिकेट मैच भी होता है। धर्मशाला इज एक्चुअली हियर यू विल फाइंड क्रिकेट ग्राउंड आल्सो इन हिमाचल प्रदेश वेयर ही इज एक्चुअली लिविंग। तो मतलब एक तरह से एग्जाइल में रह रहे हैं ना, लिव्स इन एग्जाइल लिखा ना है, मतलब ही हैड टू लीव तिब्बत एंड ही इज करेंटली लिविंग इन इंडिया। ओके, सो लेट अस मूव ऑन फर्दर। ठीक है, अब देखो इस आर्टिकल में और क्या क्या बात कही गई। देखो जो मैंने बताया कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंड है, -18 डिग्री सेल्सियस है ना, सब जीरो टेम्परेचर मतलब है कि जीरो से भी कम टेम्परेचर है, और इसीलिए अगर उनका घर बर्बाद हो गया, पीपल हैव लॉस्ट देयर होम्स, देन देयर आर चांसेस ऑफ डेथ इवन ड्यू टू कोल्ड। अगर वो अर्थक्वेक से बच गए तो ठंड से मौत हो सकती है। सो टेंट्स, फूड राशन, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर, सप्लाईज एटसेट्रा दिया जा रहा है। That is what is in the news. नीचे लिखा है the entire plateau is seismically active as well as its eastern and northern rims which overlap with Chinese provinces and all. तो seismically active का मतलब क्या होता है? Seismicity मतलब earthquake होता है ना, seismically active मतलब क्या है कि earthquake होने का चांस, earthquake का चांस बहुत हाई है, earthquake prone region what we call, ठीक है। The entire plateau मतलब they are talking about तिब्बतन प्लेटू, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं, और पास्ट में भी कई बार अर्थक्वेक आ चुका है। 2008 में 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था उसी के आसपास रीजन में, है ना। सो दीज आर द इंसिडेंट। 6.2 आया था 2023 में, दैट किल 149 एंड ऑल। खैर, तो अब आपको समझना ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर सेइंग दैट दैट इज दिस तिब्बतन प्लेटू, यानी द तिब्बतन प्लेटू है ये वाला। दिस इज seismically active, यही वर्ड लिखा ना, seismically active means there is high chance of earthquake, earthquake prone region है। उसका मेन रीजन है वही जो यहाँ पे हिमालयाज है। so this Himalaya is actually earthquake prone region. Why? सो आपने सुना होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते होगे। सो नेपाल में कई बार अर्थक्वेक आता है, 2015 में आई थिंक आया था, उससे पहले भी कई बार आया था। सो नेपाल इज अ प्लेस व्हिच इज वेरी प्रोमिनेंट फॉर अर्थक्वेक्स एंड ऑल। नाउ द थिंग इज कि क्यों आता है, इसका जो रीजन है वो है प्लेट मूवमेंट्स, और ये प्लेट बाउंड्री है। सो प्लेट बाउंड्रीज पर अर्थक्वेक आने का चांस ज्यादा होता है, बिकॉज दिस रीजन इज अ प्लेट बाउंड्री, ठीक है। बीच में, प्लेट के बीच में चांसेस कम होता है, हालांकि उसमें भी चांस होता है, बट wherever you will find plate boundaries the chances of earthquake are very high। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का पास्ट पढ़ा होगा तो देखो, जैसे ये जो है ना, ये इंडियन प्लेट है और इसके ऊपर तिब्बतन प्लेट है, और ये दोनों कनेक्टेड है। लेकिन पास्ट में ऐसा होता था, ये इंडियन प्लेट यहाँ था 71 मिलियन ईयर्स अगो, फिर ये मूव करते 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 आके यहाँ हिट किया, और ऊपर यूरोशियन प्लेट है, तिब्बतन प्लेट था, उसको हिट किया और यहाँ पर हिमालय बना, ठीक है। सो आई होप यू आर अवेयर। तो 55 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ था, 38 मिलियन ईयर्स अगो, 10 मिलियन ईयर्स अगो, फिर उसके बाद जाके यहाँ हिट कर दिया। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो जब भी दो प्लेट बाउंड्री हिट करती है, तो जैसे दिस इज द प्लेट बाउंड्री, वन प्लेट, और ये ऑलरेडी प्लेट थी, यहाँ पर तिब्बतन प्लेट थी, ठीक है। सो ये जो ऊपर वाला ये तिब्बतन प्लेट है, ठीक है, ओके। और इधर से इंडियन प्लेट आया, तो जब हिट करेगा तो कैसा हो जाएगा, तो पहले से टकराएगा, उसके बाद अगला स्टेप में ये ऐसे पहाड़ चढ़ जाएगा, ठीक है।
ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए जो पहाड़ बनता है, दिस इज एक्चुअली यंग फोल्ड माउंटेन हिमालयाज। तो जब ये हिट किया ऐसे मान लो, और ये तिब्बतन प्लेट ऐसे खड़ा हुआ है, ये इंडियन प्लेट है, ठीक है। तो ये पहाड़ बन गया, एंड यू वोंट बिलीव कि ये अभी भी मूव कर रहा है, अभी रुका नहीं है, धीरे धीरे बहुत हल्का हल्का मूव करता है। और यहीं पे जो पहाड़ बना, दिस इज कॉल्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन। Which young fold mountain we are talking about? हिमालयाज, ठीक है। तो हिमालयाज बना कैसे? बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, दो प्लेट बाउंड्री। देखो ये भी इमेज आप देख सकते हो, उसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। सो द टू प्लेट्स कन्वर्ज, एक इधर टकराए, एक उसके ऊपर चढ़ गया, तो ये पहाड़ बन गया, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली, है ना, व्हाट वी कॉल इट एज, इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन से हिमालयाज, है ना। सो दिस इज, इसी को उसको यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, इसी की बहुत रिसेंट ईयर्स में बना हुआ है, वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन्स है ये। Fold mountain मतलब it folds because it is formed as a result of two plates coming together and folding out. तो दोनों, दो प्लेट सामने से, एक प्लेट यहां से आया, दूसरा प्लेट यहां से आया, दोनों टकराया, ठीक है। तो एक टकराया, फिर ऐसे उठ गया ना, दोनों को हिट करेगा तो उठेगा ना ऊपर, सो उससे माउंटेन्स बना। सो दैट लेड एक्चुअली, दैट bulge led to the formation of what we call it as mountains or Himalayas, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा, तो अभी भी ये जो है ना इंडियन प्लेट जो वो हिट करते जा रहा है, मतलब वो मूव कर रहा है, मतलब बहुत स्लो, इतना स्लो स्पीड से कि एहसास नहीं होगा, बट इट इज मूविंग। और चूंकि ये प्लेट बाउंड्री है, यहाँ पर प्लेट मिलता है, इसीलिए इस रीजन में द चांसेस ऑफ अर्थक्वेक आर वेरी हाई इन हिमालयन रीजन, ठीक है। और इसीलिए दिस इज द प्लेट बाउंड्रीज। तो यहाँ पर मान लीजिए तिब्बतन प्लेट है, आई एम जस्ट मेकिंग तिब्बतन प्लेट, और ये इंडियन प्लेट है ना, ओके। तो और ये अभी भी मूव कर ही रहा है ऐसे, इस हिसाब से। तो ऑफ कोर्स देयर आर हाईली लाइक्लीहुड दैट यू विल फाइंड सम अर्थक्वेक इस रीजन में, बिकॉज दिस इज द रीजन व्हिच इज वेरी मच प्लेट बाउंड्री है। सो वन ऑफ द मेन रीजन इज देयर इज अ प्लेट बाउंड्री, एंड दैट प्लेट बाउंड्री इज टेक्टोनिकली एक्टिव। बाउंड्री भी है और एक्टिव भी, यहाँ पर टेक्टोनिकली एक्टिव, बिकॉज मूवमेंट ऑफ प्लेट इज स्टिल हैपनिंग, और इंडियन प्लेट अभी भी मूव कर रहा है। तो इसीलिए चांसेस आर दैट you will find, खास के आपने नेपाल में सुना होगा, if you have been reading newspaper for the past 2, 3, 4 years, I'm sure you must have come across this, ठीक है। तो ये है कन्वर्जेंट प्लेट। एक चीज बताते हैं, प्लेट्स क्या होता है। अगर आपने क्रस्ट, मैंटल, कोर पढ़ा होगा, सो सबसे ऊपर वाला लेयर क्रस्ट होता है, देन वी हैव मैंटल, देन वी हैव कोर। तो क्रस्ट का लेयर, ठीक है, ऊपर का क्रस्ट का लेयर हो गया, फिर मैंटल का कुछ ऊपर का हिस्सा, ठीक है ना, इस दोनों को मिलाकर के लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना होता है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स होता है, यानी क्रस्ट प्लस सम अबर टॉप पोर्शन ऑफ मैंटल, वो पूरा टेक्टोनिक प्लेट होता है, ठीक है। तो अर्थ जो है ना, वो डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना है। एक तो हो गया कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, है ना। दो और तरह का प्लेट बाउंड्रीज होता है जहां पे प्लेट मर्ज करता है, इसको कहते हैं, जैसे ये वाला है ना, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। जब दो प्लेट बाउंड्री दोनों के अपोजिट जा रहा हो, ठीक है, तो यहां से होता है, फिर यहां से ना न्यू ओशन क्रस्ट इज क्रिएटेड, यहाँ पर मिड ओशनिक रिज बनता है, जैसे अटलांटिक ओशन के बीच में ऐसा है, मिड ओशनिक रिज, ओशन वगैरह बनता है एंड ऑल, ठीक है। फिर एक और होता है, जैसे ये वाला है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। खैर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, बट आई एम जस्ट गिविंग अ रफ आइडिया ऑफ हाउ दिस हैपेंस। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मतलब स्लाइड करता है एक दूसरे के क्रॉस, ठीक है, ना ही सामने से हिट करेगा, ना ही अपोजिट जाएगा, रादर स्लाइडिंग, दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। सो सबसे ज्यादा जो माउंटेन्स फॉर्म होता है अर्थक्वेक्स आता है, वो इससे आता है ना, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से। दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। आई होप इट इज क्लियर। मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इट होपफुली। इज इट क्लियर एवरीथिंग? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Now let us move on to the next question. Which of the following is the oldest mountain range in India? और ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई थिंक एमएचसीटी में पूछा था। सो सिंस यू ऑल आर आस्किंग कि, एंड विल बी हैविंग सम क्लासेस ऑन एमएचसीटी, ठीक है, एमएचसीटी क्लैट, इसके लिए फिर जामिया वगैरह के एंट्रेंस के लिए भी विल बी हैविंग क्लासेस ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, यस फ्रांसिको, यू राइट, अरावलीज। तो हिमालय तो काफी लेट से बना, आपने देखा पूरा इंडियन प्लेट बन चुका था और जाके हिट किया, ठीक है ना।
जैसे ये इंडियन प्लेट है ना, तो इस इंडियन प्लेट में यहाँ पर ये सब जगह अरावलीज ऑलरेडी था, अरावलीज एंड अदर पार्ट्स, तो ये तो सबसे लास्ट में बना हिमालय, ठीक है। यस प्रांशी गोविल, यू आर राइट, प्रांशी गोयल, प्रांशी गोविल एंड प्रियांशी गोयल, यू बोथ आर राइट, हाँ। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे लेटेस्ट, इसलिए हम कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन है हिमालय, अरावली सबसे ओल्ड है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो दिस इज एक्चुअली अरावलीज, राजस्थान की ईस्ट में मिलेगा, यू शुड नो अबाउट दिस, ठीक है, ओके। और यंगेस्ट माउंटेन जो इंडिया का वही है हिमालय, because it is still in formation stage, ठीक है। Now the next is, which of the following is not the scale for measuring earthquake? Please read and then answer me. हाँ, राजस्थान हरियाणा पार्ट्स में अरावली से, yes you are right. Not पूछ रहे हैं, so we are asking not. Anyone? देखो रिक्टर स्केल, मॉडिफाइड मर्करी स्केल, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, तीनों स्केल्स यूज किया था। टेस्ला तो उसके लिए होता है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह मेजर करने के लिए, ठीक है। सो टेस्ला इज यूज्ड टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल। टेस्ला एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना। हालांकि टेस्ला जो है अब एक कार कंपनी है, टेस्ला इज आल्सो कार कंपनी, है ना, कार वगैरह बनाती कंपनी ऑफ इलॉन मस्क, है ना। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो, है ना, निकोलो टेस्ला थे साइंटिस्ट उनके नाम पे, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। बाकी रेस्ट जो है आपने रिक्टर स्केल का तो नाम सुना ही होगा, आई एम श्योर, है ना, जितना भी मेजर करते हैं जनरली। फिर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल होता है कि एक मॉडिफाइड मर्कैली स्केल जिसको कहते हैं, ये भी होता है। सो दीज आर द फेमस स्केल्स टू मेजर द इम्पैक्ट, है ना। रिक्टर स्केल एक्चुअली टेक्निकली कहते हैं मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल होता है, मर्करी स्केल से इंटेंसिटी मेजर करते हैं, ठीक है, अलग, समझ गया ना। तो थोड़ा सा फर्क होता है मैग्नीट्यूड में और इंटेंसिटी में, सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, बट फॉर यू आप कॉमन एक तरह से मान सकते हो, बट यस दैट इज व्हाट यू शुड नो। Now the next is the highest intensity of earthquake on Richter scale was recorded in which country? कब आया था, कोई बता सकता है? I am discussing it because since we have seen recently earthquake, so there are chances of questions from here. हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक कौन से कंट्री में आया था और कितना रिक्टर स्केल पे आया था? इफ यू विल टेल मी आई विल बी वेरी हैप्पी। सो एक्चुअली द राइट आंसर इज बी, चिली, ठीक है। लोग जापान लिख रहे हैं, देखो जापान इज वेरी मच फेमस फॉर अर्थक्वेक्स, इट इज ट्रू। यहाँ हर कुछ कुछ दिन पे अर्थक्वेक आता है, छोटा मोटा तो हर दिन आता है। उसका भी रीजन मैं बताऊंगा, बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मीट, इसीलिए, ओके। और जो सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी का आया था रिक्टर स्केल, मतलब मैग्नीट्यूड कह सकते हो, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड यूज करना चाहिए वर्ड, ठीक है। रिक्टर स्केल जो आया था वो था चिली में 9.5 रिक्टर स्केल, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं अभी, और चिली भी जो है ना प्लेट बाउंड्रीज पर है, ठीक है। सो आई डिस्कस अबाउट जापान आल्सो, बट इसका आंसर जो बी है, ठीक है, चिली। तो अगर आप देखोगे, आई सर्च इट आल्सो, द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक वाज ऑफ 9.5 ऑन रिक्टर स्केल अकर्ड इन चिली 1960 22 मई, ओके। यूएस की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी लिखा, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट पर भी, ठीक है, ओके। तो मैं दिखा देता हूं। सो हियर इज इंडिया, ठीक है, दिस इज साउथ अमेरिका, ठीक है। और चलिए एकदम पतला सा कंट्री है, अगर आपने सुना होगा तो दिस इज द कंट्री है, ये चिली है और इसकी कैपिटल है सैंटियागो, है ना। अब देखो होता क्या है, ये एक प्लेट बाउंड्री है, नास्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट में, नास्का एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। देखो मैं दिखाता हूं, ऐसे एक प्लेट है समवेयर रफली, इसको कहते हैं साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। और यहां पर एक प्लेट है, इसको कहते हैं नाजका प्लेट, मैं बस बता रहा हूँ रफली। तो यहाँ पर जो है ना, ये भी प्लेट बाउंड्री बन रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर चांसेस ऑफ अर्थक्वेक बहुत ज्यादा है।
और जहां पर प्लेट बाउंड्री बनता है, मैंने आपको बताया था कि वहां पे माउंटेन्स बनने के चांसेस भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक बहुत फेमस माउंटेन्स है। हैव यू हर्ड दिस? प्लेट माउंटेन्स का नाम क्या है? कैन यू प्लीज टेल मी? आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस। एंडीज माउंटेन्स, ठीक है, दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट। तो चूंकि यहाँ पे प्लेट बाउंड्री, इसीलिए देखो यहाँ पे है ना, ये चिली है, इफ यू कैन सी ऑन द मैप, where we had seen 9.5 magnitude Richter scale earthquake, ठीक है, याद रहेगा। एक आध दो चीज और बताता हूँ, बिकॉज ये सब एग्जाम में पूछा जाता है मेनी टाइम्स। चूंकि मैं चिली की बात करूं तो बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, एबीसी हो गया है ना, अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया। यहाँ ना लिथियम बहुत पाया जाता है, डू यू नो दिस? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिथियम ट्रायंगल एंड ऑल। Why is lithium so important? Because lithiums are used in बैटरी, लिथियम आयन बैटरी होती है, आपने सुना होगा। एंड आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है, दैट इज व्हाई यू विल फाइंड लिथियम इन अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली एंड आई थिंक जापान, चाइना में भी होता है, ठीक है। तो ये दीज आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स, अगर आपको एग्जाम देते हो जीके वगैरह पूछते हैं ये सब, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, नाउ सेकंड थिंग, अब हम अच्छा गाइस, एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन आल्सो, जिन्होंने लाइक नहीं बटन प्रेस किया, एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट जापान, क्योंकि आप लोगों ने जापान पर लिखा था, तो मैं आपको जापान के बारे में बता देता हूँ। Yes, Mariam, I am speaking in English as well. Nothing to worry. I will speak in both the language. ठीक है. If you see it carefully, so here is India, if you can see, and here is Japan. So this is Japan. So let me write it with red pen. This is actually Japan. And if you are able to see, this is the place where three plate boundaries merge. Yes, this is Eurasian plate, अगर आप देखोगे है ना, एक यहाँ, मतलब तिब्बतन प्लेट भी उसी का पार्ट है, तिब्बतन प्लेट जो यहाँ पे है ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। सो एंड हियर इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का पार्ट, यहाँ पे दिस वन इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। फिर हियर इज फिलीपींस प्लेट एंड हियर इज पैसिफिक प्लेट, ठीक है, मतलब थ्री क्या बोल गया, फोर है ना। सो दिस इज द प्लेस वेयर 3 to 4 प्लेट्स आर मीटिंग, एंड दैट इज व्हाई द चांसेस ऑफ अर्थक्वेक इज वेरी हाई इन जापान, ठीक है। You must have seen, when you read something about Japan, you must have seen this is the place where it's very common to have earthquakes, ठीक है। So this is the thing we should know. Now, एक चीज और बताता हूँ, अगर आप गौर से देख रहे हो, if you are seeing it carefully, this is the place, I'm making it with red pen. This is the place, this is the place where is, Anna. This is the plate boundary which connects Pacific plate with the rest of the plates, and this is the place, ये वाला हिस्सा है ना, this is the place, this is called as ring of fire, Pacific ring of fire. So this is Pacific plate which is connecting the rest of the plates. So these are the plate boundaries, and that is why it is called as Pacific ring of fire, because also known as Pacific ring of fire, circum-Pacific belt. This is the place where volcanoes and earthquakes happen. The world's 90% of earthquakes happen here, and almost 75-80% volcanoes happen here. पूरी दुनिया में जितने earthquake आते हैं 90% यहीं पर आते हैं, कहाँ पर? इस region में, Pacific ring of fire में। So Pacific ring of fire means somewhere here. Let me make here. So this is what we are talking about. This is called as this ring which I have made with red pen. This is the place where almost 90% of the world's earthquake happen, and this is famously called as Pacific ring of fire. So if you see it carefully, Japan is a part of that. Here is Japan, है ना, and this is the place where actually Japan में तो 2, 3, 3, 4 plates meet. So I think it is clear, hopefully, and I'll tell you something more about this, the concepts and all. ठीक है, तो I hope it is clear. Is it clear? Ring of fire is clear or not? Yes or no? है ना, तो वो चिली पेरू ट्रेंच है ना, इसीलिए यहाँ पर चिली में अर्थक्वेक आया था। दिस इज द प्लेस, हियर इज चिली, दिस इज द प्लेस वी हैड सीन 9.5 अर्थक्वेक, ठीक है। और अगर आपने सुना होगा, हैव यू हर्ड अबाउट मैरियाना ट्रेंच? वो भी इसी पर पड़ता है। मैरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट, चैलेंजर डीप में डीपेस्ट पॉइंट ऑन द वर्ल्ड, बिकॉज द प्लेट बाउंड्रीज मीट एंड सबडक्शन हैपेंड, तो वहां पे सबसे गहराई है ना 11.3 किलोमीटर। This is also a very famous GK question, that which is the deepest point in the world. So it is Mariana Trench, Challenger Deep कहते हैं उसको।
So I hope you are aware. Is it clear, guys? Everything is clear. Whatever I'm telling you is a top class content. You will not find everywhere. Okay, I'm not praising myself, but yes, that's the reality. Is it clear? Everything is clear. Now, please tell me about this. In which year tsunami came in the Indian Ocean? And this is very, very important in the history of India's earthquake and all. Tsunami कब आया था Indian Ocean में? And tsunami is generated. One of the reason is earthquake. So it was actually because of the earthquake and all. And it happens in ocean when it's water body. In oceans and sea, you will find this. Yes, very good. 2004 December. Mariam Safir, you're right. So actually it happened on 26 December 2004. And it was actually it came in Aceh province, Sumatra, Indonesia. I'll show you. Just wait. There go. I've just shown you. So here is actually, this is India. This is Indonesia. And in Indonesia, somewhere here is Aceh province. So somewhere here, actually, the earthquake happened, which led to the tsunami waves in water body. And this impacted the entire even India, Sri Lanka, Andaman, Nicobar, Myanmar, Burma. So this had impacted. Now, I have told you that plate boundaries are very famous for earthquakes. And if you see it carefully, देखो ये Indian plate है. ये वाला देख रहे हो? This is actually, let me make it with a black pen. This is the place. है ना? जो मैंने black से बनाया. यहाँ पर earthquake बहुत आता है. So this is actually the place where the tsunami had happened. तो यहीं पे tsunami आया था 2004 में. This is very famous. ठीक है? And if you read newspaper, तो आपने पता होगा इंडोनेशिया, मलेशिया में आज भी बहुत earthquakes आते हैं because it is at the plate boundary. So this is the reason we see actually a lot of earthquakes in this region. ठीक है? Because it is a plate boundary. That is what you should know. तो tsunami earthquake came and आपने सुना होगा तो कहीं पर ना, and it impacted India, Sri Lanka, Maldives, है ना? So this region. इनसे बहुत सारे लोग की डेथ्स वगैरह हुई थी. उसके बाद क्या हुआ था when 2004 में Indian Ocean earthquake happened. So next year government passed Disaster Management Act was passed by the Parliament, and this led to the establishment of in fact DM Act जो है ना, this actually was invoked during COVID also. आपको पता होगा जब COVID-19 happened, the government used the same law in case of disaster management, and after 2 years, and देखो 2022 में इसको lift किया गया, removed. Lifted means हटा दिया गया था. After 2 years, the government invoked Disaster Management Act during COVID-19. Okay. So under Disaster Management Act, an authority is made that is called as NDMA, National Disaster Management Authority, headed by Prime Minister. Then there is a State Disaster Management Authority headed by Chief Minister, and District Disaster Management Authority headed by DM. ये तो आपको पता होगा. उसके अलावा एक फोर्स बनाई गई है NDRF, National Disaster Response Force. It's a separate force which is helpful in fighting disaster if God forbid there is earthquake, cyclone or any other thing. आपने देखा होगा NDRF के बारे में. NDRF is there. I'm sure you must have seen, ऐसा orange dress में आपने देखा होगा. NDRF की टीम होती है. जैसे 2 साल पहले we had seen earthquake in Turkey, so India helped it by sending C-17 Globemaster. ये orange dress में होते हैं. आपने देखा होगा. I'm sure you must have seen NDRF personnel. So these are actually personnel which help people during disaster. Let's say earthquake, cyclone or any other thing like that. Okay. तो ये सब बेसिक चीजें. इसके अलावा भी कुछ होती है, जैसे एक और इंस्टीट्यूशन NIDM, National Institute for Disaster Management. So this institute has been set up under Disaster Management Act. ये सब DM Act के अंदर में ही है. ठीक है, 2005. And this is helpful in skill development. Skill सिखाने के लिए ना, how to fight like for police personnels or the NDRF personnels or research and development के लिए, है ना? So skill development की, so they train actually NDRF officials and all, that how whenever the disaster happens, how to actually fight and all, how to respond and all. ठीक है? तो ये सब लोगों को पता होना चाहिए. So ये कभी कभी पूछते हैं कि NDMA जो है, it's a statutory body under Disaster Management Act, है ना, 2005, and it is headed by whom? So Prime Minister of India. Similarly, State Disaster Management Authority is headed by Chief Minister. District Disaster Management Authority headed by Chief Minister. Okay. Sir, could you make a note on how to make notes for CN newspaper? Okay, Mariam. देखो मेरी class, my class happens on 6 p.m. every day except Friday. You will find me, है ना? Generally Monday to Thursday होती है 6 p.m. पे होगी from now onwards, and Saturday Sunday को 3 p.m. पर भी होगी. ठीक है? And एक Sunday को 8 p.m. पर भी होती है. So this is my class. Saturday, Sunday को 3 p.m.
एंड संडे को 8 PM. So these are my classes. तो अगर आप रिविजन करना चाहते हैं, if you want to do revision for MHCT, JAMIA, AMU, if you are attempting this year, then you can watch Sunday 8 PM class. And as far as how to make current affairs notes and newspapers are concerned, I will come up with the class. ठीक है, तो मैं क्लास लेकर आऊंगा. Just you have to subscribe. Please subscribe the channel, and so that whenever we'll put a video, most likely next week, if possible, I will try to arrange 1 or 2 class for that, which you are asking. ठीक है, for know how to make notes for current affairs and how to read a newspaper. ठीक है. Yes, Pranshi, Govil, I will tell you. ठीक है, so I'll be having classes in the next weeks. ठीक है. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.